Hello class. In my previous video, I had completed exercise 6.4 of triangle and its properties, question number 2. Today we are going to start with question number 3. Here, the figure is given as AM is the median. Median का मतलब है BM and MC are equal. M is the midpoint of BC. So, BM and MC are equal. So, if I see if I take it as B and C, so what I find in triangle ABM, what we get? We see that the sum of two sides, we have just gone through the property that the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. तो मुझे क्या करना है? AB. Let us assume only the first part. Let us take this triangle. So ABM. I take AB plus BM is greater than AM and take it as equation number 1. So, by which property? That the sum of length of any two sides of a triangle is greater than the third side. Again, in triangle ACM. अब मैं second part ले रही हूँ. This triangle. So, ACM, I found that CA plus CM is greater than AM. मतलब ये दोनों साइड मिलके इससे बड़े हैं, ये दोनों साइड मिलके अगेन इससे बड़े हैं, मीडियन से बड़े हैं. सो इफ आई कंबाइन दीज टू फ्रॉम 1 and 2, what I get? I get AB plus BM plus CA plus CM is greater than AM plus AM. Yes? Okay. So, what I found is AB, ठीक है, and I said BM and MC are equal. तो यहाँ पे क्या है? BM और CM दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? BC. This and this becomes BC plus CA. And this is equal to AM plus AM. So, twice AM. And this is what we had to prove in the question. Is AB plus BC plus CA greater than 2AM? Yes. AB plus BC plus CA is greater than 2AM. How? By this. In maths, we cannot say just yes or no. We have to give justification for whatever we are concluding to. So, this is the question number 3. Let us go to the next question. Question number 4. ABCD is a quadrilateral. You have to prove, actually it is just asking, is all the four sides is greater than AC plus BD. Let us see if the equation has a figure. Yes, this is given a figure. AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. तो इसको हम लोग अभी प्रूव करते हैं. Let us start. Here, question number 4 says ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA. मतलब AB, BC, CD, DA. All the four sides are greater than AC diagonal and plus BD another diagonal. So let us find out with a proof by the property. Which property? That the sum of two sides of a triangle is greater than the third side.
third side, what we get? We get that in triangle ABC, we have AB plus BC is greater than AC. इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1. AB plus BC is greater than AC. कौन से ट्रायंगल में? ABC में. Next, similarly, in triangle ACD इस ट्रायंगल में we have CD plus DA is greater than AC. और इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2. CD और DA ये दोनों साइड मिलके AC से बड़े हैं. अब यहाँ 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं, सो एडिंग 1 and 2, what we get? We get AB, BC, CD, DA. चारों साइड को मैं ऐड करने वाली हूँ, तो मुझे मिलेगा AB, BC, CD plus DA is greater than AC plus AC. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेती हूँ. मैंने क्या किया? सिंपली ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. LHS और LHS को ऐड कर दिया, RHS और RHS को ऐड कर दिया. डन. अगेन अब मैं दूसरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ABD, क्योंकि मुझे दूसरा डायगोनल भी चाहिए ना, मुझे तो यहाँ BD भी चाहिए. अभी मैंने AC की सिर्फ बात की, अभी मेरे BD के लिए मैंने कुछ नहीं किया. सो लेट अस अस्यूम दिस ट्रायंगल ABD. तो यहाँ क्या है? अगेन इन ट्रायंगल ABD we have AB. मैं AB और AD को ऐड कर रही हूँ. AB प्लस DA, ये और ये दोनों मिलके किससे बड़े हो जाएंगे? डायगोनल BD से. इसको मैं इक्वेशन 4 ले लेती हूँ. एंड इन ट्रायंगल BCD, अभी BCD ये अनदर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, ये वाला पार्ट. यहां हमें क्या मिलता है? दैट BC plus CD is greater than BD. BC और CD ये दोनों साइड मिलके BD से बड़े. अब फिर से ऐड कर दो 4 और 5 को. अब यहां ये दोनों को मैं ऐड करने वाली हूँ. LHS और LHS को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB plus DA plus BC plus CD is greater than RHS और RHS को ऐड कर देते हैं BD और BD. सिंपल. ये 4 साइड हो गए. सो AB BC, थोड़ा सा मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया है, और DA. AB BC CD और DA ये दोनों मिलके 2BD. ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 6. अब मैं 3 और 6 को देखती हूँ. यहाँ पे क्या मिला है मुझे? इसको AC प्लस AC नहीं लिखते, मैं इसको एक थोड़ा सा और इसको मैं रिफाइन करूंगी, इसको 2AC कर दूंगी. और ये AB BC CD DA एक स्टेप मैंने ऐड कर दिया. अब ये हमारा थर्ड हो गया, क्योंकि AC प्लस AC जो है 2AC हो जाता है. सिमिलरली BD प्लस BD इज 2BD. अब देखते हैं ये हमें चाहिए, और हम यहाँ तक तो पहुंच गए. AC भी है हमारे पास, BD भी है हमारे पास. तो चलो अब हम ये इक्वेशन नंबर 3 और 6 दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं. एक्चुअली इसको इक्वेशन नहीं बोलते, बिकॉज इसमें इक्वल टू नहीं है. व्हाट वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों इन इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं. सो व्हाट वी गेट from 3 and 6, we get ये ABCD ही जो है ना, ये 2 बार है. So 2 times AB plus BC plus CD plus DA is greater than, यहाँ डबल AC यहाँ डबल BD. 2 times AC 2 times BD.
दोनों साइड से अगर मैं 2 कैंसिल कर दूं तो क्या हमें मिलता है कि दिस इज ग्रेटर देन AC प्लस BD? यही तो पूछा था कि यस, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD? Yes, it is greater. We get done. Question number 4. Question number 5. ABCD is a quadrilateral. Four-sided figure है. Is AB plus BC प्लस CD प्लस DA, मतलब चारों साइड की बात हो रही है. क्या ये चारों साइड मिलके छोटे हैं ट्वाइस AC, one diagonal, plus BD? Let us find out and then we can say yes or no. तो जब हम स्टार्ट करते हैं, what property we can use here? So since sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. यही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं. इन ट्रायंगल AOB, अभी मैं ट्रायंगल AOB की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये ऊपर वाला ट्रायंगल. तो इसमें हमें क्या मिलता है कि OA प्लस OB दोनों ये और ये किससे बड़ा होगा? AB से. इज ग्रेटर देन AB. इसको हमने मान लिया फर्स्ट. सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC, ये वाला ट्रायंगल OB plus OC will be greater than the BC. OB plus OC will be greater than BC. ये सेकेंड. अब ये थर्ड वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले OCD. ट्रायंगल OCD क्या मिला हमें? OC plus OD is greater than CD. थर्ड ट्रायंगल. सिमिलरली AOD, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इन ट्रायंगल AOD क्या मिला? OD प्लस OA इज ग्रेटर देन AD नहीं लिखेंगे, DA लिखेंगे, क्योंकि हमें हमारे इक्वेशन में हमें प्रूव करना है DA, इसलिए हम लिख रहे हैं DA. और ये हो गया. अब ये चारों से हमें कुछ कंक्लूड करना है, तो अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, व्हाट वी गेट? ये चारों LHS को हम ऐड करें तो OA प्लस OB. अब देखते हैं, OA जो है ना वो 2 बार है, OB भी 2 बार, OC भी 2 बार, OD भी 2 बार. इसका मतलब ये चारों हमने 2-2 बार रखे हैं और ये सब ग्रेटर देन है ये चारों साइड पे, यानी AB BC CD DA. ये चारों से हमने यहां तक कंक्लूड किया है. सो व्हाट वी हैड टू प्रूव? अब देखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों साइड जो है ये क्या है? अभी इसको जब मैं ऐड कर, इसको मैं देखो ऐड कर रही हूं तो OA प्लस OB नहीं, OA प्लस OC, OA OC किसके बराबर है? AC के बराबर है. यहां से हमें मिलता है कि OA और OC और OC किसके बराबर है? AC के बराबर है. और OB OD किसके बराबर है? BD के बराबर. OB OD ये किसके बराबर है? BD के बराबर है, क्योंकि O जो है ये तो यहां से देखो ना, OA OC AC आ गया. ठीक है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं. ट्वाइस OA OC AC, OB ये और OD दोनों मिलके
BD के बराबर है, और ये किस इज ग्रेटर देन AB, BC, CD प्लस DA. So what we wanted to prove कि ये जो साइड है ये छोटा है. तो हाँ, ये साइड छोटा है ना, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं. दैट इज ये 4 साइड्स इज लेस देन, ये साइड छोटा है ना, लेस देन ट्वाइस AC प्लस BD. तो इसका क्या आंसर होगा? इज दैट इज यस, AB plus BC plus CD plus DA is less than twice AC plus BD. Next question, question number 6. Okay, question number 6. The length of two sides of a triangle are given 12 centimeter and 15 centimeter. We have to find out what can be the measure of the third side. कितने, what can be the possible dimension, कितने सेंटीमीटर से बड़ा और कितने सेंटीमीटर से छोटा. So let us use the property again, same property that we are using throughout this exercise. Sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर दो साइड दिया है 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलके थर्ड साइड से बड़े होने चाहिए, whatever be the measurement of third side. तो इसका मतलब कि 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा थर्ड साइड. हमें ये तो पता चल गया कि किससे छोटा होगा. अब इसमें एक और फॉर्मूला एडेड है कि ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ, सम के बारे में तो हमने बहुत बातें कर ली, यहाँ एक और प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ any two sides. This you can see in my previous video. We had discussed two properties together. एक में मैंने सम की बात की थी कि सम का मतलब दो साइड को जब मैं ऐड करूं तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, और उसी के साथ मैंने ये बात की थी कि द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, जब डिफरेंस की बात कर रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन से कोई चीज बड़ी होगी या छोटी होगी? इट शुड बी लेस. So difference of the length of any two sides should be smaller than the third side. Third side. इसके लिए आप लोग पहले वाली वीडियो को रेफर करेंगे जहां मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की थी. बिफोर स्टार्टिंग 6.4 आई हैव डिस्कस्ड दीज टू प्रॉपर्टीज. तो सम वाली प्रॉपर्टी तो हमने बहुत सारी यूज भी की है, ये वाली प्रॉपर्टी अभी तक हमने यूज नहीं की थी. So here we are using difference of the length of any two sides should be smaller than the third side. So difference between 15 and 12 centimeter. So 15 centimeter minus 12 centimeter, ये जो है छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से. डिफरेंस है, ऐसे भी कोई चीज छोटी होगी, तो हमारा जो डिफरेंस है क्या है? 15 minus 12 is 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड. सो थर्ड साइड के बारे में हमें ये पता चल गया कि 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा. सो व्हाट इज द पॉसिबल मेजरमेंट? द थर्ड साइड should the length of the third side should fall between 3 centimeter and 27 centimeter. So here we have completed exercise 6.4. Bye bye.